So, first of all, welcome to our moral value class. So today আমি কথা পাতিম মহাভাৰতৰ ওপৰত। সকলে মহাভাৰতৰ শুনিছানে? আরে ভাই আমি নুশুনিলে কেনেকৈ হ'ব না নহয়? মহাভাৰত is the longest poetic weight লিখা epic হয়। It was written by किसने लिखा था? नहीं लिखिसले व्यासदेव है ना, महर्षि व्यासदेव। और केতিয়া लिखिছিলে? 400 BC। केতিয়া लिखिছিলে? 400 BC। So Mahabharat is a story of every human life। प्रत्येक মানুহৰ ভিতৰতে মহাভাৰত হৈ আছে। মহাভাৰত আমি কিহৰ কাৰণে জানিব লাগে? আমি ৰেসপেক্ট ৱুমেন নহয়, সেইটো কথা ফাৰ্স্ট আহে। আৰু নেক্সট হৈছে যে সদায় न्याय, हमेशा न्याय की जीत होती है और अन्याय हमेशा क्या होता है? परास्त होता है। আমি মহাভাৰত বুলি ক'লে মানে বহুত বিলে ক্যাৰেক্টাৰ কথা আমি জানো। কাৰ ক্যাৰেক্টাৰটো মনত আহে প্ৰথম? ফাৰ্স্ট কাৰ ক্যাৰেক্টাৰ মনত আহে? কৰ্ণ। কোনোবাই কৈছে कर्ण, अजय से कर्ण, अरे बोले सबर कर्ण मना रहे। अरे कृष्ण जी का नहीं आता है, अर्जुन का नहीं आता है, फिर भी कर्ण पहले आता है। चलो सही है, मुझे तो कृष्ण जी का ज्यादा ही मतलब पहले आते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले महाभारत की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुआ, कोर पर आरंभ हुई? মহাভাৰতত শিকিবলগীয়া যথেষ্ট আছে। এজ এ মৰেল ভেলিউ ক্লাছ হিচাপে why I choose মহাভাৰত, it is only the reason because তাত থকা যিমানবোৰ ক্যাৰেক্টাৰ আছিলে, দুৰ্যোধনে হোক বা যুধিষ্ঠিৰে হোক বা पितामह भीष्म हो বা देवव्रत है ना, पितामह भीष्म जो पुराना नाम उनके क्या थे, पुराना नाम माने কি আৰু यंग সময়ত যেটো জনা হৈছিলে देवव्रत, তেখেতে হোক প্ৰত্যেকটো ক্যাৰেক্টাৰৰে এটা কি আছে, বিশেষত্ব আছে। আমি প্ৰত্যেকটো ক্যাৰেক্টাৰৰ আমি আলোচনা কৰিম। আজি ফাৰ্স্ট পাৰ্ট আমি আলোচনা কৰিম, নেক্সট ক্লাছত আমি নেক্সট পাৰ্ট আলোচনা কৰিম। সো ফাৰ্স্ট আমাৰ তোমালোকক মই কোৱেশ্চন এটা সুধিছো, শকুন্তলা যি কালিদাসৰ যে ষ্টৰী আছিলে, কি আছিলে? শকুন্তলা আৰু দুষ্যন্ত এণ্ড শকুন্তলা ষ্টৰীটো সবে শুনিছো নে নাই শুনা? সকলোৱে শুনিছো মানে। তো তেওঁলোকৰ পুত্ৰ আছিলে ভৰত। তেওঁলোকৰ পুত্ৰ কোন আছিলে? ভৰত। তেওঁ 7জন কি আছিলে? পুতেক আছিল। তেওঁ কি হৈছিলে? 7জন পুতেক আছিলে আৰু তেওঁ যথেষ্ট মানে আইডিয়ালিষ্ট এজন কি আছিলে? ৰজা আছিলে। তেওঁ যুদ্ধত আহে। তেতে এদিনাখন তেওঁ মানে সকলোৱে সুধিছে আৰু ৰাজমন্ত্ৰীসকলে কি ভাই महाराज বা राजन बोली कोई टाइम जे राजन, आपका उत्तराधिकारी घोषित करने का समय आ गया है, अब आप किसको उत्तराधिकारी करेंगे? बड़ा दुविधा में पड़े भरत जी, महाराज भरत जी। तो तेखते ऋषिमुनि एजনৰ ওচৰত গ'ল আৰু সুধিলে যে কি কৰা যায়। তেতিয়া ঋষিমুনিজনে কয় যে প্ৰথমে নিজৰ মনটোক জয় কৰা, লোভ মোহৰ পৰা ত্যাগ কৰা, তাৰ পাছত এজ এ ৰজা হিচাপে তুমি ডিসাইড কৰা। তেনেকে বুলি তেখেতক কৈ পঠিয়ালে। ঋষিমুনিজনে ডাইৰেক্ট কোৱা নাই যে অমুকক ৰজা বনোৱা। তেতিয়া তেওঁ ভাল ধৰণে চিন্তা কৰি এদিনাখন তেওঁ আনসাৰ দিলে যে মই মোৰ পুত্ৰ 7জনৰ ভিতৰত মই কাকুৱে কি বুলি যোগ্য বুলি মই নাপালো। সো ইস वजह से মই अभिमन्यु जितु अभिमन्यु মানে वो महाभारत वाला अभिमन्यु কথা কোৱা নাই মই। তেতিয়াৰ সময়ৰ মানে অভিমন্যু নিজে ৰজা হিচাপে লৈছিল। তো সেই সময় যথেষ্ট মহান আছিল। ৰজাই মানে নিজৰ নেক্সট সাকসেসৰ ৰজা হ'বৰ কাৰণে কি নালাগে বুলি কৈছে, নিজৰ পুতেক হোৱাটো জৰুৰী নহয়, যিজন যোগ্য আছিল তাকহে ৰজা দিয়ে। সেই কাৰণে সেই সময়ত বহুত ধুনীয়া আছিল। মহাভাৰতৰ নিচিনা কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ যুদ্ধ তেনেকুৱা हुआ नासिल। सो दैट इज व्हाई तेखेतर नामते भारतवर्ष, उसी के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। এনেকে বুলি মানুহে কয়, কিছুমানে কয়, কিছুমান বুকত বেলেগ থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। সো তাৰ পাছতে লাহে লাহে
আমাৰ মেইন যিটো কেৰেক্টাৰ কোন আহিব শান্তনু শান্তনু তো হস্তিনাপুৰৰ ৰজা হৈ তো মেইন আমাৰ কিংডম তাত কি আছে হস্তিনাপুৰ কি হয় হস্তিনাপুৰ সো এতিয়া আমাৰ হস্তিনাপুৰৰ ৰজা কোন হৈ আছে শান্তনু কালক্ৰমত গৈ 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 ৰাজা ভৰতৰ পৰা আহি 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 শান্তনুৰ সময়ত আহি গ'ল তো শান্তনু এদিনাখন চিকাৰত তেনেকে গৈছিলে তেতিয়াই তেখেতৰ বৰ ভাল লাগি গৈছিলে মা গংগা তেওঁ যি স্বৰূপ আছিলে তাৰ তেওঁ অতিকৈ মানে মুগ্ধ হৈ গৈছিলে তাৰ পাছত তেওঁ ক'লে যে আপুনি হস্তিনাপুৰৰ মানে মহাৰাণী হ'ব ভাল পাব নেকি মানে বিচাৰো মানে নে ক'লে আৰু তো মা গংগায়ে না বুলি নকলে बोले कि चलेगा लेकिन महाराज आपको एक वचन देना पड़ेगा कि मैं जो भी करूं आप उसमें मुझे सवाल कभी नहीं पूछेंगे और जिदिनाখন আপুনি মোক প্ৰশ্ন সুধিব হেদিনাখনে মই চিৰদিনৰ কাৰণে আপোনাৰ পৰা কি লম বিদায় লম তো সেই একো কথা নেভাবিয়ে তেওঁ কৈছে শান্তনুৱে এইবোৰ কথা নুশুনাৰ আগতে তেওঁ কৈ দিলে যে হ'ব वो की करीब अपना कथा आपका बात हम कभी नहीं पूछेंगे आपको कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे हम इतना आपसे प्रेम करते हैं ठीक है सर बिया हल तो बिया हुआ पासो तेखेतर एक पुत्र संतान हुआ संतान होने की तुरंत बाद ही माँ गंगा ने क्या किया उस बच्चे को लेके गंगा में बहा दिया और राजा शांतनु इस बात से बड़ा दुखित हुआ बहुत बेया লাগিছে আৰু বহুত বেয়া লাগিছে কি কৰিব কিন্তু এটা প্ৰশ্ন সুধিব নোৱাৰি यार ये क्या कर दिया मेरे पुत्रों को और আমি গম পাওঁ যে ৰজা মহাৰাজাৰ ঘৰত যেতিয়া पुत्र संतान जन्म होता है मतलब क्या वारिस कितना मतलब उच्च दर्जे में रखता है किमान खुशी হয় আমি তো टीवी सीरियल দেখিছো যে मुबारक हो महाराज आपका बेटा हुआ बोली बोले मैंने दिगिर एकदम मोनी मुकुटा सिंगी प्लानी दी दिए ना नहीं दिए है ना सो ठीक उसी तरह उन्होंने भी दिया लेकिन तुरंत बाद ही देखा कि माँ गंगा ने क्या किया उस बच्चे को पानी के स्वाद पानी बहा दिया तो बड़ा ही मायूस हुआ नेक्स्ट आको এটা बच्चा जन्म दिले हे एकेटा सेम सिचुएशन आको माँ गंगाए লৈ গৈ কি কৰি দিলে উতুৱাই দিলে তো তেনেকতে মহাৰাজ শান্তনু বিৰাট মনত কি লাগিলে দুখ লাগিলে তো তেনেকে প্ৰশ্ন যেহেতু সুধিব নোৱাৰে আকৌ মা গংগাকো তেখেতে বহুত ভাল পায় প্ৰশ্ন সুধিলে গুচি যাব নিজৰ লৰাতকৈ তেতিয়ালে কাক ভাল পায় নিজৰ পত্নীক ভাল পাইছিলে সো इस वजह से क्या हुआ কি হল তেনেকে হয় হাতটা बच्चा हाथटा केसुआ तेनेके पानीत उठवाई दिले लेकिन एक शब्द भी महाराज शांतनु ने नहीं पूछा एक कहानी हमें जानो नहीं जानो तो जो नहीं जानता है वो बड़ा अच्छा है जान लो और जिसने जानते हो वो और एक बार रिवाइज कर लो ठीक है শিকিব লগিয়া খিনি আমাৰ লাহে লাহে মই কৈ গৈ থাকিম এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি ষ্টৰী বেছত আমি আহিলো ঠিক আছে তো 8 নম্বৰ যেটো সন্তান আহিলে তেখেতক লৈ পানীত উতুৱাবলৈ লৈছিলে তেতিয়ালে দেৱব্ৰতে সৰি महाराज शांतनुए रखले जे रुक जाइए मैं और अपने पुत्रों का बलिदान नहीं सह सकता आप बताइए ये क्या कारण है कि आप हमारे पुत्र को ऐसे पानी में विसर्जित कर रहे हैं তেতিয়া माता गंगाएও কি কৰিছে নিজৰ মন মৃত ভাঙি প্লানি তেওঁ বুজাই দিলে যে এটা সময়ত বুলে महाराज शांतनु आरु माता गंगा कार पुत्री ब्रह्मा जी कार पुत्री असले ब्रह्मा जी पुत्री असले तो ब्रह्मा जी निजर कन्याक লৈ প্লানি ইন্দ্ৰদেৱৰ স্বৰ্গত ইন্দ্ৰলোকত কি কৰিবলৈ গৈছিলে
এটা মানে ফাংচন समझ लीजिए और ফাংচন এটাত গ'ল তেতে কি হৈছিলে সকলো বহি আছিলে আৰু তাতে আমাৰ শান্তনু মহাৰাজ হস্তিনাপুৰ কা মহাৰাজা তেও আছিলে সেই কাৰ দৰবাৰত ইন্দ্ৰদেৱৰ দৰবাৰত তেও এজন ৰজাৰে মানে আছিলে আৰু তো সেই সময়তে সকলোৱে বহি থকা সময়ত ওপৰৰ পৰা আমাৰ সজনকৰ্তা কোন ব্ৰহ্মাদেৱ ওপৰৰ পৰাই আছিলে আৰু সবে কিবা এনজয় কৰি আছিলে ডান্স এনজয় কৰি আছিলে কিবা এনজয় কৰিছিলে সেই সময়তে কি কৰিছিলে কি হৈছিলে বতাহৰ এজাক আহি মা গংগাৰ মানে এনেকুৱা এটা আচল থাকে না থাকে সেইটো অলপমান কুৰুৱাই লৈ গৈছিলে কুৰুৱাই লৈ যাওঁতে সকলোৱে যিসকল মানে মেল আছে পুৰুষ আছে তেওঁলোকে সকলো মানে আইস डाउन কৰি ললে তাকে আইস डाउन কৰি ললে पर हमारे जो देवव्रत है और जो माँ गंगा जो प्रथमते माने दुइजने प्रेमत কৰিছিল সেইকাৰণে দুইজনে মানে হেতু অনুভৱই কৰা নাই কি হল কি নাই অকল দুইজনে মানে মুখামুখিকে চাই আছিলে সেই কথাটো কোনে দেখা পালে ব্ৰহ্মাদেৱ সজনকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱে দেখা পাই বিৰাট তেখেত মনত মানে খং উপজিল আৰু ক'লে যে मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम्हें कहाँ रहना पड़ेगा पति पत्नी हिसाबे माने पृथ्वी और पृथ्वी तो हमें गम पावे कि हमारे जो धरती है इस धरती में नरक नाम की कोई अलग जगह तो है नहीं यही है और इंद्रदेव तो भाई हेवन तो हेवन और पर दुजने कोट बने पथियाई दिया होल नरक नहीं नरक नहीं नरक भी मत बोलो अच्छा भी है हमारे पृथ्वी है ना तो वहां पे आगे दोनों तो तेनेके होय प्लानी दुइजने की কৰি আছিল এটো হৈছিল तो चलो समझ में तो आ गया शांतनु क्वेश्चन हो दिले मारा शांतनु क्वेश्चन हो दिले आंसर हो दिले लेकिन उन्होंने बोला कि तो तार पाছত अहार पाছত तो बोले चलो हम दोनों तो अपना सजा भुगत रहे लेकिन ये जो 7 बच्चे आपने मार दिए इसका क्या तो उसे नहीं स्वामी ये जो 7 नहीं 8 बच्चे हैं ना ये भी स्वर माने ऋषि मुनि एजনৰ অভিশাপ লৈ আছিলে যে পৃথিৱী তেওঁ বহু বছৰলৈকে কি কৰিব লাগিব থাকিব লাগিব এই কাৰণে মই তেওঁলোকক वचन दिया था उन लोगों को मैंने वचन दिया था कि मैं तुम लोगों का उद्धार करूंगी उन्हें माता गंगाए हे माता गंगाए हेकाने जन्म दियार लगे लगे তেওঁলোকক মাৰি পেলাইছিলে নহলে মানে যুগে যুগে বহুত বছৰলৈকে থাকিব লাগিব যেনেকে পিতামা ভীষ্ম कितना दुख सहा है মানে নহয় চকুৰ আগতে দুটেইবোৰ এতিয়া মই কৈ থাকিম তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা চকুৰ আগতে কিমান দুখ বিলাক তেওঁ হৰিব তো উनको सहना पड़ेगा तार पाছত এই গুটেই কাহিনীবোৰ কোৱাৰ পাছত माता गंगा উলাই যাবলৈ ওলালে তেতিয়া ক'লে যে तो मेरे पुत्र का क्या होगा जो तुम्हारे गोदी में है अभी ये इस पुत्र को मैं अभी ले जा रही हूँ जब इस पुत्र का उचित समय आएगा तब मैं आपको अपना पुत्र लौटा दूंगी और इस पुत्र का नाम होगा क्या क्या देवव्रत की देवव्रत ठीक है चलो फर्स्ट एक नहीं मानी लो फर्स्ट एक नहीं मानी लो श्योर बोले मना कर सकती हो ठीक है सो তেনেকে হয় আমাৰ দেৱব্ৰত হ'ব ঠিক আছে কিন্তু ঠিক তেনেকুৱাতে আকৌ বহুত বছৰ যোৱাৰ পাছত এতিয়া ৰাজা শান্তনু বয়স হৈছে সিংহাসনত কোনো নাই উত্তৰাধিকাৰী ক'বলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ পুত্ৰ দেৱব্ৰতকো পোৱা নাই পাছত মানে তেনেকেই দেৱব্ৰতে এটা যুদ্ধত মানে কি হৈছিলে এটা যুদ্ধত নিজৰ পিতাৰ লগত তেওঁলোকৰ দুইজনৰে কি হৈছিলে মিলন হৈছিলে সেই মিলনৰ সময়তে তেতিয়া হলে কি বুলি কয় शांतनु है तुम इतने मतलब दोनों विद्यात पारगत पितामा भीष्म जीतु हबो एतिया तो देवव्रत तेखेते कोर পৰা धनुविद्या শিকিছিলে
कार पड़ा? परशुराम जी, ठीक है। परशुराम जी से उन्होंने अपना धनुर्विद्या सीखा था। उस टाइम में परशुराम जी से जिसने भी सीखा ना, वो तो भाई विश्व विजेता ही बना है। ठीक है, आमी लाहे लाहे गम पाम जे कुने कुने तेर পৰা धनुर्विद्या শিকিছিলে। इसीलिए बोला जाता है कि अगर गुरु महान हो तो शिष्य भी हमेशा महान ही होता है। समझ रहे? तो তেনেকে আমাৰ অসমৰো আছে। আমাৰ শংকৰদেৱ কাৰ শিষ্য আছিলে? মাধৱ কন্দলীৰ শিষ্য আছিলে। মাধৱ কন্দলীও কি আছিলে? মহান ব্যক্তিত্বৰ গৰাকীত আছিলে, নে নহয়? এজন ৰাইটাৰ আছিলে। তেওঁৱে সেই সময়ত শিক্ষাদান দিছিলে সকলোকে। তেওঁ তুলতে পঢ়ি শংকৰদেৱৰ কি হৈছিলে? জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিছিলে। আকৌ শংকৰদেৱৰ শিষ্য কোন আছিলে? माधवदेव। वो भी क्या थे? आज भी हमारे समाज में हम भगवान के दर्जा देते हैं दोनों महापुरुषों को। इसीलिए बोला जाता है कि अगर गुरु महान तो शिष्य भी हमेशा महान ही होते हैं। तो ठीक उसी तरह महान ही होते हैं, मतलब कि हम अलमान चेष्टा करब লাগিব। ऐसा नहीं कि गुरु महान है तो फिर शिष्य भी महान ही होगा। तो काफी हद तक ये चीज लागू होता है। बेल बेल भी बजे है। चलो फिर शांतनु रजा शांतनु और देवव्रतर मिलन हो गल। बोले जे मैं माँ गंगा का पुत्र देवव्रत हूँ, এনেকে বুলি কলে। अपार शक्ति, अपरंपार साहस কোনে দেখিলে? शांतनुए দেখিলে देवव्रतर गात। एकदम माने उत्साहित हल और माने जानिबर कारणे एगारने चाहिए जे किसका पुत्र हो तुम। कोৱাৰ लगे लगे गम पाले जे ये तो मेरा ही पुत्र है। तेतिया माँ गंगा पानीर পৰা प्रकट हो आहि पेलानी कय जे आज से हम आपके पुत्र को आपको लौटा दिया। तेनेके शांतनुए देवव्रतक कोले লৈ গল সিংহাসনলে, মানে নিজৰ ৰাজপ্ৰসাদলে লৈ গল। তাৰ পাছতে আকৌ এটা টুইষ্ট আহিব। ट्विस्ट तो यहाँ पे है बेटा, ट्विस्ट यहाँ पे है। যেনেকে আগত মা গंगाक লগ পাইছিলে তেনেকে মনটো ভাল হৈ আছিলে আৰু কাৰ? महाराज शांतनु का नया नया बेटा वापस मिला है, बड़े ही खुश मिजाज। तार पाছত তেনেকে শিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে কি হল? এগৰাকী মৎস্য কন্যাক তেওঁ দেখা পালে। কোন আছিলে? মৎস্যকন্যা आगे नहीं है। सो वे क्या कर रहे थे? अपने जो बोट माছ ধৰি আছিলে। ठीक है, কিছুমানত माछ ধৰি থাকিলে बुकत আপোনালোকে तुम लोगों को मिलेगा, किसी बुक में मिलेगा कि वो बैठी हुई थी। तो हमारे जो महाराज शांतनु है वो किसके प्रेम में पड़ गए? ये मत्स्य कन्या के प्रेम में पड़ गए। अब वो प्रेम में पड़ने के बाद ने अपना प्रेम किसके सामने प्रकट किया? मत्स्य कन्या के सामने। और मत्स्य कन्या थोड़ी सी समझ रहे हैं आप कि एक राजा के साथ में विवाह, मतलब उनके भी थोड़ा सा लालच भी आ गया कि देखिए मैं एक मत्स्य कन्या और महाराज मुझे पसंद कर रहे हैं, तो फिर तो इनकार का तो नाम ही नहीं आता। तो यस कुआ ना प्रथमते पासले यस कब और किंतु यही चीज था कि मत्स्य कन्याई गम पाइছিলে যে এতিয়া ৰজাৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব? দেৱব্ৰত। অলৰেডি যুজা কৰিলে। দেৱব্ৰত নতুনকৈ আহিছে ৰাজসিংহাসনৰ ৰাজপ্ৰসাদত, ঘোষণা কৰিবলৈহে আছে মাথো। পিতাই ভাবিছিলে যে সিংহাসনটো পুত্ৰক দি পেলানি মই আৰু मत्स्य कन्या मेरे नए जो पत्नी आएंगे उनके साथ में हम वन में वास करने चले जाएंगे। तेनेके कोले और कथाबुर का मत्स्य कन्या। तो मत्स्य कन्या जी ने बोला कि मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि बताइए मैं हमारे जो पुत्र होंगे वो तो कभी राजा बनेंगे नहीं, और आप तो सोच रहे हैं कि हम लोग जाके वन में रहेंगे, कुटीर में रहेंगे, तो हमारे बच्चे का क्या भविष्य होगा?
तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। विराट दुविधात पड़ी गल शांतनु। ऊपर से वो प्रेम भी करते थे मत्स्य कन्या से। तार पाছত तेও राजप्रसादत আহিल। এইবিলাক আমি শুনিছো না নাই আগত सुना है। कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। अगर नहीं सुना है तो मैं पहले फिर से बोलूंगी कि चीज याद रखना है, ठीक है। कुछ गलतियां हमें जिंदगी में नहीं करनी है। कुछ गलतियां करने से पहले, कुछ कर्म करने से पहले सोच भी लेना चाहिए कि उसका जो परिणाम है वो क्या होने वाला है। हमेशा आप जो कर रहे हो वो सही नहीं भी हो सकता है। हमेशा जो आप डिसीजन ले रहे हो उससे भले ही आपके मन में क्या है, मन को अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो आपके भविष्य के लिए, आपके बाद में आने वाले भविष्य के लिए वो क्या हो सकता है, चुनौती भी हो सकता है। तेও ঘৰত গ'ল, ৰাতি শুব পৰা নাই, বিচলিত, ভাত ভালকে খোৱা নাই, দেউতাকৰ বয়সো হৈছে, তেও মানে ভাত চাত খোৱা নাই। আৰু বহু দিনৰ মূৰত দেৱৰাত আহিছে, দেউতাকৰ ওচৰত আহিছে, ভৰি চৰি দবাই দিছে, কথা পাতিছে। আৰু তেতিয়া বিৰাট মানে মনটো ডাউন ডাউন দেখা পাইছে দেউতাকক। তেতিয়া দেউতাকক সুধিলে আৰু যে পিতাजी मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ दिन से कहीं विचलित है, मायूस है। आप बताइए आपका दिल में क्या है, मन में क्या है। मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहता हूँ। তেতিয়া প্ৰথমে তেওঁ কোৱা নাই আৰু तुम अपने माने ताजपोशी का इंतजार करो, हम आपको राजा घोषित करेंगे। नहीं पिताजी, पहले आप मतलब आपके समस्या के बारे में बोलिए, उसके बाद ही मैं ये ग्रहण करूंगा। सो शांतनुए की कइले कथाटू कले जे मैंने एक मत्स्य कन्या से मुझे प्रेम हो गया है। तो क्यों हल लगिले। तो पिताजी इसमें क्या चिंता करने की बात है, लाइए हमारी छोटी माता, अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कन्या को है। किस वजह से? उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी है कि हम अपने बड़े पुत्र और यानी कि तुम्हें राज सिंहासन देने वाले हैं, और हम जब विवाह करेंगे उस स्त्री से, उस कन्या से, तो हमारे बाद जो हमारे पुत्र आएंगे उसको क्या मिलेगा। तो हे कारणे আমাৰ একদম পিতাৰ প্ৰেমত মানে ইমানেই তেওঁ কিবা আছিলে। আগত পিতা আৰু পুত্ৰ হেনেকুৱা, आजकल की तरह नहीं था। कोई ना पापा का ना पिता का मतलब ये रखते हैं, मान रखते हैं, আমাক লাগে বুলি ক'লে আমাক লাগে আৰু, है ना, बाकी जो भी हो। लेकिन उस टाइम में नहीं था। माँ बाप का इच्छा पूरा কৰাটো ল'ৰা ছোৱালীৰ सबतকৈ ডাঙৰ পুণ্য। और मैं क्लासत जो कालिও কৈছো, আগতো কৈছো जे उस इंसान का दान तो भगवान भी ग्रहण नहीं करता जिस इंसान ने अपने माँ बाप को असंतोष किया हो। इसलिए माँ बाप को जब असंतोष करते हो तभी भगवान भी उसका दान ग्रहण करता है। तो हे पुत्र धर्म पालन कर देव कले जे आज से मैं वचन लेता हूँ कि मैं कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। और এটা কথাও কৈছিলে যে সিংহাসন में नहीं बैठे, फिर ইয়াৰ पुत्र जी আহিব, সেই पुत्रটো সিংহাসন খুজিব। সেইকাৰণে তেখেতে এটু প্रण লৈ দিলে যে मैं कभी सिंहासन में नहीं बैठूंगा और मैं आजीवन कुमार ही रहूंगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करूंगा और हमेशा हस्तिनापुर के लिए अब खुद को अर्पित करता रहूंगा। বুজি পাইছনে? সো এনেকে কোনে প্রাণ ললে? পিতামহ ভীষ্ম, পাছলে হ'ব আৰু দেৱব্ৰতে। তো শান্তনু বহুত বেয়া লাগিছে। তো কিয় মোৰ কাৰণে এনেকৈ কৰিব লগা কৰিছে, মানে কৰিব নালাগে, এতিয়া মোৰ আশা পূৰণ কৰিব নালাগে, তোমাৰ আশা পূৰণ কৰিব লাগে, এনেকে কৈছিলে। বাট
पुत्र तो पुत्र, अगर पुत्र हो तो किसकी तरह? पितामह भीष्म की तरह। लेकिन उन्होंने जो कदम लिया वो कदम ने पूरे महाभारत होने का भी एक कारण है। ठीक है, अब मैं वो बता रही हूँ। तार पाছত তেওঁ কি হৈ গল? महाराज शांतनु तेखतक वर दिले जे मैं अपने पुत्र से इतना खुश हूँ, मैं तुम्हें वर देता हूँ। अगर तुम्हारे हाथ उठाएगा, मैं तुम्हें वर देता हूँ, विश्व को साक्षी मान के, जल वायु ब्रह्मा विष्णु सबको साक्षी मान के मैं प्रण लेता, तुमको मैं वर देता हूँ, जब तक तुम ना चाहो तब तक तुम्हारा मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकता। तार पाছত देवव्रते की কৰিলে तू ग्रहण কৰি लो। तार पाছতে আৰু हे धूमधाम हो गया, इसका ब्याह हो गया। महाराज शांतनु और मत्स्य कन्या के बीच में विवाह हो गया। ठीक है, तो विवाह होने के बाद में हम लोग थोड़ा सा जल्दी में जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में जो आएंगे उसको हम लोग अच्छे से और भी एनालाइज करेंगे। तो उनके बाद में उनके पुत्र हुए। कितने पुत्र थे, किसी को पता है? मत्स्य कन्या और शांतनु महाराज के कितने पुत्र थे? 2 जन। कौन कौन? विचित्रवीर और अच्छा है, आप लोग बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो वैसे ही थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो वैसे ही उनके पुत्र हुए। लेकिन वही बोला जाता है, भागवत गीता हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि महाभारत से ही भागवत गीता का भी जन्म हुआ है। तो वहीं पे बोला गया है कि हमेशा हम अपने समान, अपने बराबर, अपने कुल के, अपने ज्ञान के बराबर इंसान के साथ ही विवाह करना चाहिए। तभी अच्छा ब्लड जब मिक्स हो गए तभी अच्छे पुत्र का भी जन्म होता है। जैसे हम लोगों ने कल बात किया था कि हमारे पुत्र होने पे, पुत्री होने पे हमारे विवाह का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे विवाह अगर अच्छे मतलब ভাল এটা सेम সম্বন্ধৰ বা सेम नॉलेजৰ सेम মানে कैटेगरीर মাজত যেতিয়া নহয় তেতিয়াহলে আমাৰ মাজৰ পৰা যি ওলাব वो प्योर नहीं होता है, वैसे बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। तो वहां पे क्या हुआ, उनके जो दोनों पुत्र थे दोनों ही वरे ही मदिरा पान करते थे। बुझले, खूब बेसी मदिरा पान करते थे। मदिरा माने कौन है? एकेबारे हम लोग पूरा मतलब वो वैदिक वाले शब्दों पे जा रहे हैं, समझ रहे? वैदिक वाले शब्दों में जा रहे हैं। तो उसी प्रकार वे दोनों ही सिंहासन के योग्य नहीं थे। बड़े ही दुख भरा कहानी। अब जो योग्य थे उसने तो क्या बोला? जो योग्य थे उसने क्या बोला कि मैं कभी भी सिंहासन में नहीं बैठूंगा। तो आज इसी तक हम लोग आज पहला पार्ट इतना तक ही पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसी के साथ में मैं एक बोल के जाती हूँ कि बच्चों, जब योग्य इंसान अपना जो प्राप्ति है, যোগ্য মানুহজনে যেতিয়া নিজৰ পাবলগীয়াখিনি এৰি দিয়ে তেতিয়াই সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰদূষিত হয়। যোগ্য মানুহজন সেইকাৰণে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে লাগিব লাগে। যোগ্য মানুহজনে ত্যাগ কৰি অযোগ্যজনক কেতিয়া, যোগ্যজনে যেতিয়া নোলোৱা তেতিয়া অযোগ্যজনে সুবিধাটো ল'ব নাই। अगर पितामह भीष्म राजा बनते तो शायद से महाभारत का कोई वो ही नहीं होता। जो भी हो, ये तो एक एपिक है। यहाँ पे कुछ हमें लेसन देने के लिए पूरा ये जो महाभारत है वो रचा गया है। ठीक है, लेकिन इसमें सारे लोगों ने कुछ ना कुछ तो गलती किया है जो हमें नहीं करना है भविष्य में। हेतुए হৈছে यार जाजीर मेन टॉपिक और हेतुए कथा जे योग्य इंसान कभी भी अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहिए। যেতিয়া তুমি যোগ্য সেই পার্টিকুলার পজিশনৰ কাৰণে
সেই অংশৰ কাৰণে সেই অংশটো বেলেগৰ কাৰণে কেতিয়াও ত্যাগ নকৰিবা, কাৰণ বেলেগৰ কাৰণে যেতিয়া ত্যাগ কৰিবা সেই বেলেগ যিজন হয় সেই বেলেগজন অযোগ্যও হ'ব পাৰে, আৰু অযোগ্যই যেতিয়া ৰাজসিংহাসন চলায় তেতিয়া প্ৰজাৰ দুৰৱস্থা হোৱাটো খতম। योग्य इंसान कभी भी अपना पोजीशन नहीं छोड़ता। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पाठ करेंगे। अब भूल जाओगे क्या तुम लोग? मैं आपको प्रश्न दूंगा क्या माजे माजे। अब ये पूरी कहानी आपको घर में जाना है और घर में मम्मी पापा से को सुनानी है। शायद मम्मी पापा को कुछ और अलग से जानता हो, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग आना, फिर मुझे बताना कि मैम ये चीज गलत हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था शायद, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको ठीक करेंगे। ठीक है कि चलो ये ऐसा भी था। महाभारत ऐसा है कि किसी किसी बुक में अलग लिखा है, किसी किसी बुक में अलग लिखा है, तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है कहानी में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।